Thank you, sir, for your kind and encouraging words. रास्ता तो दिखाया था इसी जहान ने, रास्ता तो दिखाया था इसी जहान ने, अरमानों को सजाया था इन्हीं अपनों ने। बस दिखाना तो दुनिया को है कि किस मंजिल तक पहुंचाया आपने। हर सपने को अपना बनाया आपने, हर सपने को अपना बनाया आपने। उंगली पकड़कर चलना तो माता पिता ने सिखाया, उंगली पकड़कर चलना तो माता पिता ने सिखाया, लेकिन जीवन की राह पर चलना सिखाया आपने। Now, I would like to invite the sculptor of humanity, seasoned scholar and navigator of this flagship of knowledge, our respected chairman, sir. His presence is always a moral boost for us. So, sir, please come on the stage and bless us with your words. Sir, please. Today's function, I heartily welcome our chief guest, Shri Goel, guest of honor, Shri B.C. Agarwal ji, and the president of Agarwal Shiksha Mandal, secretary Agarwal Shiksha Mandal, all the members of Agarwal Shiksha Mandal, including the member of the governing board, and the faculty of the BACT, the staff of BACT, dear students. It is a very great pleasure to have a company of our chief guest, Mr. Goel, and guest of honor, Shri B.C. Agarwal ji. Director has stated several things to you about the Shiksha Mandal. One thing is there, this college is run by the trust. We believe in quality, not the quantity. We are spending the huge amount which we are getting from the students for the development and the maintaining the strength of this institution. One thing I think after director forgot to mention this fact that today's achievement is Miss Urvashi Pandey. She is the fourth year student of 2012 batch. She got the gold medal from UPTU. She stood 14th among the whole of the university and she got the gold medal. It is a very great achievement for the BACT. With these words, I heartily welcome to all the chief guests and our chief guest and the guest of honor. And I will only say that this college is having a good quality of the students and we are maintaining these students. The cultural activities are also very necessary for the development of the students. So the Arnoma is being celebrated every year and I think you will have a great pleasure to have this Arnoma function. With these words, I heartily thank you. Jai Hind. थैंक यू सो मच सर। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वीसी अग्रवाल जी हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हम सभी के लिए कुछ पल निकाले हैं। श्री वीसी अग्रवाल जी joined the RPJ group. Now it is RP Sanjeev Goenka Group as President Corporate HR in November 2010 to lead HR function of the group. He is also Group Management Board member. As a part of leadership team in LOCL and IBP, he handled key responsibilities of overseeing the strategic business growth and HF strategies. We are also highly honored to have with us the guest of honor, Shri V.C. Agarwal ji, amongst us today. In spite of his heavy schedule, he accepted to grace today's function. We are waiting with full of ebullience to listen to your motivational words. Sir, please come on the stage and bless us with your words. Sir, please. मैं हिंदी में बात करूं? मैं लेक्चर नहीं दूंगा, आप लोगों से बात करूंगा।
आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री दीपक गोयल जी, संस्था के चेयरमैन श्री माधव शरण अग्रवाल जी, संस्था के सभी अधिकारीगण, यहाँ के अध्यापक लोग और यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर आपके बीच में आने का मौका दिया और आपसे बात करने का मौका दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ आप लोगों के बीच में आकर के। मैं आप लोगों को अपने अनुभव के हिसाब से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, मेरा जन्म मथुरा में ही हुआ है। मथुरा में ही मैं पढ़ा हुआ हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई एक बहुत ही छोटे स्कूल जिसका नाम महावर वैश्य प्राइमरी स्कूल था, जहाँ पट्टियों पर बैठकर के पढ़ाई होती थी, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई चालू की थी। उसके बाद में मैं किशोरी रमन कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद में मैं रुड़की यूनिवर्सिटी गया, जिसका नाम अभी IIT रुड़की है। ये पिछला बैकग्राउंड मेरा कहने का एक ही मकसद था कि आपकी पिछली क्या बैकग्राउंड रही है, किस स्कूल या कॉलेज से आप पढ़े हैं, उसका आपके भविष्य पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। आप बच्चे लोगों मथुरा के BSA इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई किसी और अच्छे नामी स्कूल में पढ़ रहा है और नामी कॉलेज में पढ़ रहा है, IIT में या NIT में, उसका आपके भविष्य पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आपका आगे बढ़ना, आपके जीवन में सफलता लाना उस बात पर डिपेंड करता है। मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से, लेकिन मैं इंडियन ऑयल में बोर्ड मेंबर था ह्यूमन रिसोर्स का। मेरे बच्चे मुझसे अक्सर पूछते थे कि पापा आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई डिग्री नहीं है, आप ह्यूमन रिसोर्स की इतनी सीनियर पोजीशन में कैसे काम करते हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और इंडियन ऑयल के बाद में अभी मैं एक प्राइवेट ग्रुप में, जो कि काफ़ी बड़ा ग्रुप है, उसमें भी पिछले 3 साल से मैं ह्यूमन रिसोर्स का ही काम देख रहा हूँ। तो सिर्फ आप लोगों को कहने का मतलब यह है बच्चे लोगों कि आपकी क्या पढ़ाई है, क्या बैकग्राउंड है, किस स्कूल या कॉलेज से आप लोग पढ़े हैं, उसका आप लोगों में किसी में भी कोई कॉम्प्लेक्स डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी आज क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करेंगे, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इस संस्था के जितने भी व्यवस्थापक हैं, जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में लोग हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये संस्था इतनी अच्छी तरीके से चल रही है। मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी जानकारी है और मैं कुछ तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जानकारी लेने का मौका मिलता रहा है
और मैं